Good morning, students. Jai Hind. How are you? So, students, my name is Muhammad Adil and I'll be teaching you English. Okay, so right now I'm starting with English grammar. So, the first chapter in your grammar is sentences. So, students, you must be aware of the types of sentences and the definition of sentences in previous classes. But right now, I would like to revise those concepts for you. So, students, what is a sentence? Sentence is a group of or group or combination of words making complete sense. Here I want to emphasize that making complete sense is very important. For example, anything which is a group of or combination of words doesn't mean it's a complete sentence. Okay? We market, bicycle, go to, buy. So, students, this particular example is a group of words, is it? But can we say it a sentence? No, we cannot say it a sentence because it doesn't make any complete sense. On the other hand, if you read the second sentence, we go to market by bicycle. So here you will be able to understand its meaning. Is it? Making complete sense means कि आप उसकी meaning समझ पा रहे हो या नहीं. Clear? So similarly, we go to market by bicycle means हम लोग market bicycle से जाते हैं. So here the meaning is clear, and since the meaning is clear, therefore we can call it a sentence. So the main recognition of a sentence is that it should be giving a proper meaning. Okay. Now let's check the types of sentences. So students, for the types of sentences, we have four kinds of sentences. Okay. First is assertive sentence, second is interrogative, third is imperative, and fourth is exclamatory. I will explain these things in detail. Let's go further. So, assertive sentence can further be classified in two types: affirmative sentences and negative sentences. Here I want to elaborate a bit. Look, students, कभी कभी सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सेंस है? मीन्स कि आप चीज़ों को अग्री कर रहे होगे, लाइक अब चीज़ों का आंसर येस में आ रहा होगा या नो में आ रहा होगा. ठीक है? या फिर आप चीज़ों को कह रहे होगे येस आई कैन डू दिस, या फिर नो आई कैन नॉट डू दिस. सो अगर कहीं सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा. क्लियर? बट यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि सेंटेंस हमेशा एक आंसर के रूप में होना चाहिए. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आंसर. इसी चीज़ को मैं इलेबोरेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ. ठीक है? सो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस. ओके, आई विल पुट सम क्वेश्चंस बिफोर यू and you have to answer in assertive sentences. So students, these questions are: what is your favorite pastime? And I really want you to participate in this. So बच्चों बताओ ज़रा सा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है, तो आप क्या बताओगे? यानी आप अपना टाइम पास सबसे अच्छा कैसे करते हो, बताइए. सो किसी का फेवरेट पास टाइम प्लेइंग फुटबॉल होगा, किसी का प्लेइंग क्रिकेट होगा, किसी का वॉचिंग कार्टून होगा, किसी का वॉचिंग मूवीज़ होगा, किसी का बाइसिकलिंग होगा. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, different people have different pastimes. So students, different people have different pastimes. Similarly, how many people make a cricket team? So आपको कंप्लीट इसका आंसर करना है कि how many people make a cricket team. ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, कितने पीपल आपको यहाँ दिख रहे हैं? 5 पीपल दिख रहे हैं. लेकिन
ये देखो ब्लू कलर का दूसरे टीम का, ये ग्रीन कलर का दूसरे टीम का है, ये वाइट कलर का जो पहना है वो अंपायर है। सो एक टीम, एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए कितने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है? सो आप आंसर क्या करोगे सर? 11 पीपल मेक अ क्रिकेट टीम। कंप्लीट सेंटेंस आपका यूं ही आएगा, राइट? सिमिलरली, हु डू यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद? क्लियर? हु डू यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद? Where do you wish to travel? Which storybook do you like the most? Did you meet your childhood friend last Sunday? So, friends, these are the questions that you have to answer. Clear? Now, the next is आपको करना है क्या? इन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड उसी के साथ उसका आंसर करना है, और आंसर करके इसका जो भी आंसर होगा आप मेरे को सेंड करोगे, ठीक है? नाउ मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बट डोंट कॉपी दैट आंसर, राइट इट फ्रॉम योर साइड। क्लियर बच्चों? चलो, तो जो आंसर्स हैं वो ये हैं कि माई फेवरेट पास टाइम इज रीडिंग स्टोरी बुक्स। 11 people make a cricket team. I enjoy spending time with my friends. I wish to travel to Delhi. I like an evening with Uncle Tom the most. ठीक है? सो बच्चों ये एक स्टोरी बुक है। सो इसी स्टोरी बुक का मैंने नाम लिखा कि आई लाइक एन इवनिंग विद अंकल टॉम द मोस्ट। सिमिलरली, द नेक्स्ट इज yes, I meet my childhood friend last Sunday. Look at the question number 6. It is asking about, did you meet your childhood friend last Sunday? So you say yes, I meet my childhood friend last Sunday. There's a little bit mistake, so I would like to rectify it. Students, यहाँ पे ये जो मीट है ना, यहाँ देखो मीट नहीं होगा बच्चों, यस आई मेट होगा, MET। आई एम राइटिंग इट अगेन, कट इट, ठीक है? जो स्पेलिंग होगी यहाँ पे वो आई मेट होगा, ठीक है? इसको करेक्टिफाई कर लेना बेटा। आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड लास्ट संडे। नेक्स्ट इज आई एम प्लानिंग टू विजिट माई होम टाउन इन October. And polyglot is the term used for someone who knows many languages. Clear? ठीक है? चलो, सो नेक्स्ट इज कि जब आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिए, सो स्टूडेंट दीज आर द एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। क्लियर? क्यों एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस का देखो, माई फेवरेट पास टाइम इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। क्लियर? 11 people मेक अ क्रिकेट टीम, ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है क्योंकि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। आई विश टू ट्रेवल टू दिल्ली, ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है। सो इसी तरीके से यू डिस्कवर कि सेंटेंसेस पॉजिटिव का फ्रेम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर? वही मैंने बताया कि देखो दीज अबव सेंटेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट काइंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? So students, when we find a question in the sentence, then it is called interrogative sentences. Means if you find a question, clear? अब ये तो आपको पता होगा कि सेंटेंस में क्वेश्चन है या क्वेश्चन एज आंसर लिखा हुआ है। क्लियर ना? जैसे एग्जाम्पल में है व्हाट इज योर एज, सो हेयर इट इज अ क्वेश्चन। इज इट अ क्वेश्चन और नॉट? यस, इट इज अ क्वेश्चन। सिमिलरली, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप हर दिन स्कूल जाते हो, प्रतिदिन स्कूल जाते हो? तो ये भी देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? सिमिलरली, वेयर हैड यू गॉन इन समर वेकेशन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप समर वेकेशन में कहाँ गए थे। सो इज इट अ क्वेश्चन और नॉट? यस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है? सो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मोर ओवर देखो एग्जाम्पल 1 में देखो, एग्जाम्पल 3 में देखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और वेयर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, डू है, ठीक है? सो व्हेन यू विल रीड टेंस, सो देयर आई विल टीच यू
कि डू या फिर डज या फिर हैज़ हैव, ये सब कैसे यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के सेंस में। ठीक है, अभी तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो अपनी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे होता है। नाउ द नेक्स्ट इज imperative sentences. Imperative sentences are very interesting sentences. Do you know why? Because imperative sentences are assertive sentences with helping verb or main verb written in the beginning of the sentence. यानी कि अभी आपने पढ़ा assertive sentence, अभी आपने पढ़ा assertive sentence, clear? So अब आपको पहचान है कि what is assertive sentence, ठीक। लेकिन assertive sentence और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे helping verb sentence के पहले आ जाता है या मेन वर्ब सेंटेंस के पहले आ जाता है। अब नेचुरल सी बात है कि जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले आ जाएगा तो सेंटेंस का फ्रेम चेंज हो जाएगा, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंसेस। बट ये मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया कि जब कभी आपको इम्परेटिव सेंटेंस पता करना हो तो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस से थोड़ा हट के अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले लिखा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। लेट्स चेक द एग्जांपल। ओपन द डोर। सो स्टूडेंट्स हियर ओपन इज अ मेन वर्ब, मीन्स जो मेन काम हो रहा है वो दरवाज़ा ओपन करने का हो रहा है, दरवाज़ा खोलने का हो रहा है, ठीक है। सो ओपन इज अ मेन वर्ब, क्लियर, और इसी मेन वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड हेंस इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। सिमिलरली डू नॉट प्ले विद फायर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो प्ले है सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हो सर यहाँ तो डू पहले लिखा हुआ है, प्ले तो लिखा नहीं है, प्ले तो बाद में लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट ऐसे समझो कि डू या प्ले, ठीक, डू या प्ले, मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट हो रहा है और बाद में मेन वर्ब भी आ गया है। तो हमारा जो डेफिनेशन है कि शुड बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो डेफिनेशन देखो फुलफिल हो रहा है। पहले एग्जाम्पल में ओपन यानी मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल में डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल सेज ईट हेल्दी एंड स्टे फिट, यानी हेल्दी खाना खाओ और फिट रहो, ठीक है। सो ईट हेल्दी का मतलब हेल्दी खाने में अच्छा ये मैगी और तुम लोगों का मैगी मैक्रोनी एंड बर्गर नहीं आता है, ठीक है ना। हेल्दी खाने में क्या आता है, हेल्दी खाने में यू कैन हैव पल्सेस एंड चपातीज, राइस। सो योर पेरेंट्स विल बेटर गाइड यू रिगार्डिंग द हेल्दी फूड। राइट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ईट हेल्दी। सो यहाँ पे ईट यानी जो मेन वर्ब है खाना वो पहले आ रहा है, क्लियर। सो right now you are able to understand the structure of a imperative sentence, the structure of an imperative sentence, clear. But now I'll explain you why to why to use these sentences, इसका यूज क्या है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना। imperative sentences are used to express order and request, to express ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में पर के एग्जाम्पल्स में ऑर्डर या रिक्वेस्ट क्या था। देखो व्हेन यू सी ओपन द डोर, सो यू आर ईदर ऑर्डरिंग द पर्सन और रिक्वेस्टिंग द पर्सन, ठीक है। अगर आप इसी के आगे प्लीज लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टिंग द पर्सन, क्लियर। लेकिन अगर आपने केवल बोला ओपन द डोर, सो यू आर ऑर्डरिंग द पर्सन। सिमिलरली डू नॉट प्ले विथ फायर, अब इफ एनीवन इज गोइंग टू प्ले विथ फायर, सो आप उससे डांट के या ऑर्डर दे के मना कर रहे हो कि डू नॉट प्ले विथ फायर। एंड ईट हेल्दी एंड स्टे फिट, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस को भी हम जो है कैन वी कैन कॉल इट एन इंपरेटिव सेंटेंस। नाउ द last is exclamatory sentences. So this is more interesting kind of sentence. Why? Let me explain you.
Exclamatory sentences are used to express surprise, shock, amazement, and etc. So, used to express surprise, shock, amazement, etc. These sentences have exclamatory mark within it or at the end. So, why I say this? देखो बच्चों, ये सरप्राइज यूज करने के लिए होगा, एक्सप्रेस करने के लिए, शॉक एक्सप्रेस करने के लिए होगा, या अमेजमेंट एक्सप्रेस करने के लिए होगा. ठीक है, कैसे शॉक, सरप्राइज और अमेजमेंट है मैं आपको सिखाता हूँ. लेट्स चेक दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, हुर्रा वी हैव वन द मैच. सो व्हेन यू विन अ मैच, व्हेनेवर आप जब भी कोई मैच जीतते हो तो आप एक बहुत एक्साइटमेंट सा होता है, बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है. सो दैट्स व्हाई वी यूज़ हुर्रा फॉर दैट. क्लियर? सिमिलरली, what a fantastic dancer she is. For example, you see one of your friends dancing in the annual function. Clear? And जब आपने उसके डांस को देखा, so you said, आप उसके डांस को देख करके क्या हो गए? आप उसके डांस को देख करके सरप्राइज हो गए. ठीक है ना, आप उसके डांस को देख के सरप्राइज हो गए. जब आप उसके डांस को देख करके सरप्राइज हो गए, इट मीन्स कि यू आर सरप्राइज्ड. ओके, सो व्हाट अ फैंटास्टिक डांसर सी इज. फिर आप इसको एक अपने सरप्राइज को इस तरीके से शो कर रहे हो कि व्हाट अ फैंटास्टिक डांसर शी इज. नाउ द पॉइंट इज कि इसका फ्रेम क्या होता है. देखो देखो बच्चों, मैंने बताया ना कि एक्सक्लेमेटरी मार्क तो दिखेगा. कभी कभी विद इन द सेंटेंस दिख जाएगा, कभी कभी एट द एंड दिख जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो विद इन द सेंटेंस दिख रहा है. यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है कहाँ, विद इन द सेंटेंस है. और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है. क्लियर हो रहा है ना. अब आगे देखो, although it starts with what or how, it is not interrogative but exclamatory sentences. मतलब कि देखो जैसे यहाँ पे ये what से स्टार्ट हुआ. क्लियर? लेकिन फिर भी ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. डू यू नो बच्चों वाई? ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि जब भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता है ना, तो यू विल ऑलवेज सी कि व्हाट के बाद यू विल गेट अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, यू विल गेट अ हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. सो अब आप व्हाट इज योर नेम में पहले व्हाट आया, फिर इज आया, फिर योर, फिर नेम. सो पहले व्हाट है क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब. क्लियर हो रहा है ना. यही डिफरेंस होता है. बट यहाँ पे व्हाट अ फैंटास्टिक डांसर सीज, यहाँ पे फ्रेम क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद क्या है, सीधे सीधे एडजेक्टिव आ जा रहा है. सीधे सीधे क्या आ जा रहा है, एडजेक्टिव. फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, फैंटास्टिक एक एडजेक्टिव है. सो ये सब मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो आई एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. राइट नाउ अपने आप होमवर्क ये नोट करो कि आपको करना क्या है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपको करना ये है कि जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ इट. ओके, एंड इस प्रॉपर नोट्स को बना करके मेरे को आपको सेंड करना है. ठीक है ना. मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से क्या क्या सारी चीज़ें. आई हाईलाइट दीज थिंग्स और आई अपलोड द PDF एज वेल. ये इजी है थोड़ा. आई अपलोड द PDF. ठीक है बच्चों. सो आई अपलोड द PDF and you have to like make a note of all these things in your copy and send it to me on your personal WhatsApp number. So that's all for the day. Thanks a lot बच्चों.